और ब्रेकिंग 10 की खबरों की शुरुआत करेंगे आज की बेहद अहम खबर के साथ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान सामने आया है। अमेरिका यात्रा के दौरान एक प्रोग्राम में उन्होंने बयान दिया है और पश्चिम की नकारात्मक सोच की आलोचना की है। निर्मला सीतारमण ने उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारत में मुसलमान फल फूल रहे हैं, मुसलमान व्यापार कर रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की हालत बेहद खराब है। अगर मुसलमानों को किसी तरह की यहां दिक्कत होती तो क्या उनकी संख्या बढ़ती? ये बात कही है निर्मला सीतारमण ने अपने अमेरिकी विजिट के दौरान। क्या कुछ कहा है आपको दिखाते हैं। India has the second largest Muslim population in the world. And that population is only growing in numbers. If there is a perception or if there is in reality, their lives are difficult or made difficult with the support of the state, which is what is implied in most of these write-ups, I would ask, will this happen in India in the sense, will the Muslim population be growing than what it was in 1947, as opposed to, let us say, I take the name of the country and therefore the contrast can be sharper, as opposed to Pakistan, which was formed at the same time India was divided into two Pakistan. Pakistan declared itself an Islamic country, but however is said, minorities will be protected. Every minority has been dwindling in its number, or if I may use the word which is harsher, decimated in Pakistan. Even some of the Muslim sects have also been decimated. Violence prevails against Muhajirs, Shia, and every other group you can name, which is not accepted by the mainstream, I don't know, Sunnis probably. Whereas in India, you would find every strand of Muslim doing their business, their children getting educated, fellowships are being given by the government, and I would want to see where exactly is that one state where. And again, law and order is a very state subject, it's not the government of India's subject. Each province has its elected government, they take care of the law and order in those states. So across the board in India, if violence is happening to make Muslims get affected, itself is a fallacy as a statement. It cannot be so. Each province and its police are different. They are run by the elected governments in those provinces. So that itself tells you how these reports have no clue of the law and order systems in India. To say it's all the blame of Government of India, I would want to say, then tell me, between 2014 and today, has the population dwindled? Has the deaths been disproportionately high in any one particular community? So I would rather invite these people who write these reports to come to India. I'll host them. I host them. Let them come and let them travel normally and prove their चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी पवन गौड़। पवन, अभी हमने सुना निर्मला सीतारमण ने साफ तौर पर कहा है कि भारत का मुसलमान फल फूल रहा है, तरक्की के भी उसको मौके मिल रहे हैं। ओवरऑल पर्सपेक्टिव में किस तरह से देखेंगे उनके इस बयान को? देखिए, निर्मला सीतारमण आजकल अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां वो इंडियन मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक की G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स की बैठक है, उसमें हिस्सा लेने गई हैं। वहीं उन्होंने पीटरसन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जो वाशिंगटन डीसी में है, वहां उन्होंने एक चर्चा के दौरान इस पूरे वाकये का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पश्चिम के देश जो लगातार कहीं ना कहीं वो इंडिया को एक माइनॉरिटीज के मामले में कहीं ना कहीं एक गलत तथ्य पेश करके उनके सामने, पूरी दुनिया के सामने गलत तथ्य पेश करना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि
जब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही देशों का बंटवारा हुआ और जब दोनों ही देश आजाद हुए तो उसके बाद में हिंदुस्तान में जितनी संख्या थी माइनॉरिटीज की और खासकर अगर मुस्लिम समुदाय की बात करें तो वो जितनी संख्या थी उसके बाद से लगातार जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। यहां रोजगार के बहुत सारे मौके उनको मिल रहे हैं, यहां सरकारी जॉब हो या प्राइवेट काम हो वो लगातार उन लोगों को मिल रहे हैं माइनॉरिटीज की अगर बात करें तो। जबकि अगर पाकिस्तान की बात करें तो जितनी संख्या वहां अल्पसंख्यकों की थी आजादी के बाद से वो लगातार गिर रही है और वहां अल्पसंख्यकों के क्या हालात हैं वो लगातार दुनिया के सामने है। और यहां तक कि उन्होंने कहा कि जो शिया जो मुस्लिम समुदाय है उसके हालात भी पाकिस्तान के अंदर खराब हैं। तो उन्होंने सीधे सीधे दुनिया को दिखाया कि जो चीज आप हिंदुस्तान के बारे में अवधारणा आप बनाते हैं दुनिया के सामने ऐसा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा, निर्मला सीतारमण ने कहा कि जो जिसको भी सच जानना है वो हिंदुस्तान आइए, मैं सबका स्वागत करती हूं, इनवाइट करती हूं कि आप हिंदुस्तान आइए और यहां के जो मुस्लिम लोग हैं वहां आइए, जमीनी हकीकत देखिए और फिर अपने किसी भी जो निष्कर्ष है उस पर पहुंचिए। लेकिन सिर्फ यही कुछ रिपोर्ट्स के माध्यम से एक अवधारणा बना लेना किसी भी देश के बारे में वो ठीक नहीं है। और निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि हालांकि जो कानून व्यवस्था है वो राज्यों का सब्जेक्ट होता है, वो केंद्र सरकार का सब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी जब आप आंकड़े देखेंगे, जब आप नंबर्स पर जाएंगे तो आप पाएंगे कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान लगातार तरक्की कर रहा है और यहां किसी भी तरह का प्रताड़ना उनको नहीं दी जा रही है। बिल्कुल पवन, आपने तमाम तर डिटेल्स जो है वो हमारे दर्शकों के सामने रखी हैं। पवन, एक और पॉइंट यहां पर उस पर एनालिसिस चाहेंगे। लगातार सोशल मीडिया पर हम खुद देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, दाने दाने को वहां के लोग जो है वो मोहताज हो रहे हैं। कई ऐसी भी सोशल मीडिया पर पोस्ट हमने देखी है जिसमें आज भी वो ये कह रहे हैं कि वहां के जो आम लोग हैं कि इससे अच्छा तो कि हम भारत में ही रहते, यानी कहीं ना कहीं वहां के निवासियों को भी ये लग रहा है कि भारत में मुसलमानों की स्थिति कहीं बेहतर है। और एग्जैक्टली यही बात यहां पर निर्मला सीतारमण ने कही है। जाहिर तौर पर जिस तरह से बहुत सारे देश और सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये एक ट्रेंड बनाने की कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर अल्पसंख्यकों की हालत बहुत ज्यादा खराब है, उनको लगातार परेशान किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सच्चाई है वो इसके बिल्कुल विपरीत है। ऐसा संदेश देने की कोशिश वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने पूरे भाषण के दौरान की थी। तो उन्होंने कहा कि आप चाहे देख लीजिए पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, जो अर्थव्यवस्था इस समय खराब है, लगातार बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इससे बढ़िया हमारी स्थिति अगर हम हिंदुस्तान के अंदर होते तो वहां ज्यादा बेहतर होती। यानी कि एक संदेश साफ है, हिंदुस्तान में जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं वो माकूल हैं, वो अनुकूल हैं सभी वर्गों के लिए, चाहे वो अल्पसंख्यक वर्ग हो या बहुसंख्यक वर्ग हो, सबके लिए माकूल है। जैसा कोशिश होती है लगातार एक विचार बनाने की, एक स्पेक्ट्रम बनाने की कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज की हालत खराब है, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है। और यही कोशिश निर्मला सीतारमण कर रही है लगातार, क्योंकि दुनिया के कई सारे देश ऐसा एक संदेश देते हैं और इन सब पर सवाल पूछा जाता है। बिल्कुल पवन, और इस पर अब क्या कुछ रिएक्शंस रहेगा उस पर भी नजर बनी रहेगी। पवन गौड़, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। ब्रेकिंग एट 10 में एक और अहम खबर से आपको रूबरू करवाएं, जिस पर लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का जम्मू कश्मीर दौरा और उनके इस दौरे का आज दूसरा दिन है। जम्मू में आध्यात्मिक विकास केंद्र का वो दौरा करेंगे और एलजी मनोज सिन्हा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। साथ ही बानेहाल काजीगुंड टनल के काम का भी वो जायजा लेंगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि रामबन में कुनफर टनल का भी वो उद्घाटन करेंगे। तो आज का दिन भी बेहद अहम रहने वाला है और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी लगातार वहां पर मौजूद हैं। खास तौर पर जो टनल के काम है उसका वो जायजा ले रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मकामी शहरी। हमें ये बताइए कि आज रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के मिनिस्टर नितिन गडकरी जी जो हैं वो कामकाज का जायजा ले रहे हैं। ये जो हाईवेज बन रहे हैं, टनल्स बन रहे हैं और एक कनेक्टिविटी हो गई है, क्या कहना चाहेंगे इस डेवलपमेंट के हवाले से? सर, मैं वेलकम करना चाहता हूँ नितिन गडकरी से, जो उनने यहाँ काम किए हैं, जो पूरे वेस्ट ऑफ कंट्री में काम किए, वो बहुत सराहनीय काम है। और जब से वो मंत्री बने हैं रोड ट्रांसपोर्ट के, बहुत अच्छे काम किए हैं। तो हम शुक्रिया करते हैं
इंडियन गवर्नमेंट की कि उन्होंने यहाँ पे एक कनेक्टिविटी दी हमें, कश्मीर और बनिहाल को मिला है। जो हमें 1.5 घंटे का रास्ता था वो 15-20 मिनट में हम कवर करते हैं, तो शुक्रिया है इसका। तो कुछ और भी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे अभी बानिहाल रामबन स्ट्रेच या फिर और टनल्स जो हैं वो थ्रू हो रही हैं, तो उन चीजों को आप कैसे देखते हैं? सर, जो लोकल एज अ लोकल जो है वो हर एक मॉनिटर करता है काम को, और माशाल्लाह बहुत अच्छे से काम चल रहा है। तो टेक्निकल पर्सन्स काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह मे भी 2-3 सालों में ये कनेक्टिविटी जम्मू टू श्रीनगर हो जाएगी और बहुत सारा डिस्टेंस कम हो जाएगा। बिल्कुल, हमारे साथ नासिर अली खान हैं। ये बताइए कि ये जो रोड हाईवेज बन रहे हैं, एक डेवलपमेंट हो रही है, इसके हवाले से थोड़ा सा बताइए। कनेक्टिविटी है जहां जो जम्मू कश्मीर है, स्पेशली वादी जो है, वो कनेक्ट हो रही है रेस्ट ऑफ इंडिया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है, जिसके लिए हम थैंक यू कहना चाहेंगे। पहले तो ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे श्री नितिन गडकरी जी का, क्योंकि उनका विजन था कि हम कुछ ऐसे हाईवेज डेवलप करें जो कश्मीर वैली को कनेक्ट करें हमारी रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ। और कुछ दिन पहले भी उनका एक कोट पढ़ा गया था, जहां पे ये कहा गया था कि हम रोड्स के जरिए लोगों को कनेक्ट करेंगे इन अ फास्टर वे देन एयरवेज। सो अब एक आम आदमी जो वो महंगी टिकट्स अफोर्ड नहीं कर पाता था डिफरेंट जगहों पे जाने के लिए, और जो डिफिकल्टीज हमें जम्मू श्रीनगर हाईवे पे देखने को मिलती थी, इस टनल के बाद अब 1 से 1.5 घंटे का जो आपका ट्रैवल जर्नी का है, टाइम ट्रैवल, वो कम हो जाएगा। सो अब आप कम से कम वक्त में जम्मू पहुंच सकते हैं। और बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद है बानिहाल साउथ पोर्टल जो टनल है, नवयुगिया टनल, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इसको दुल्हन की तरह सजाया गया है और चंद ही लम्हात के बाद जो है यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी अपने काबीना के साथियों के साथ यहाँ पे आने वाले हैं, यहाँ पे समारोह में शिरकत करने वाले हैं। ये आप पूरे टनल एरिया को देख सकते हैं, यहाँ पे दुल्हन की तरह इस टनल को सजाया गया है। नितिन गडकरी जो हैं यहाँ हाईवेज और जो नई ब्रेक थ्रूज हैं, टनल्स का जो ब्रेक थ्रू किया गया है, उसके कामकाज का जायजा लेने वाले हैं। और उनके हमरा जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह यूनियन मिनिस्टर, उसके साथ साथ एलजी मनोज सिन्हा, उनकी भी शिरकत जो है वो मुतवक्का है। और कुल मिलाकर यहाँ जो अरेंजमेंट्स हैं वो इन प्लेस हैं, तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई है और चंद ही लम्हात में उनकी जो शिरकत है वो मुतवक्का है। कैमरामैन अयूब खान के साथ जहूर रिजवी, बानिहाल नेशनल हाईवे। सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे दो साथी बिलाल बाली और जहूर रिजवी लगातार मौजूद हैं। सबसे पहले हम रुख करना चाहेंगे बिलाल बाली का। बिलाल, इस वक्त की अपडेट चाहेंगे आपसे। मरकजी वजीर का जो जिला रामबन का दौरा है, उसको लेकर हमने देखा पूरे हाईवे पर, अगर अभी हमने सुबह ट्रैवल किया तो सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं यहाँ पर। उसके अलावा सीताराम बस्ती के पास में जो टनल का ब्रेक थ्रू होना था, वहाँ पर भी पूरा स्टेज बनाया गया है। पूरी तैयारियां है, उस टनल को, पूरे टनल को तिरंगे के साथ जो है सजाया गया है। तमाम तरह के इंतजाम इन प्लेस है। वहीं अगर हम कुनफर टनल की बात करेंगे जो आज थ्रू होने वाला है ट्रैफिक के लिए, वहां भी मुकम्मल तैयारियां हो चुकी है और इंतजार हो रहा है कि कब मरकजी वजीर यहां पहुंचेंगे और इस टनल के जरिए जो है ट्रैफिक को आने जाने की इजाजत होगी, जिससे तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर का सफर जो है डिफिकल्ट स्ट्रेच माना जाता था पीड़ा और कुनफर के दरमियान, वो अवॉइड हो जाएगा और टनल के जरिए लोग आसानी से सफर करेंगे। तो अवाम बेताबी से इंतजार कर रही है, लेकिन हमारे पास जो ताज़ा इतलात है कि बानिहाल से लेकर रामबन के दरमियान में मरकजी वजीर जो है पहले बाय रोड आने का प्लान था, वो नहीं है। शायद वो हेलीकॉप्टर के जरिए बानिहाल से चंद्रकोट आएंगे और वहां से कुनफर टनल का जो है वो वहां पर उसमें गाड़ियों को चलाने की इजाजत दी जाएगी। उसके बाद वहां से कटरा मूव करेंगे। अब आप उम्मीद कर रही थी, रामसू में लोग वेट कर रहे थे, रामबन में डिफरेंट लोकेशन पे कि आज मरकजी वजीर यहाँ आएंगे, यहाँ पर जारी 4 लेन प्रोजेक्ट के काम का वो खुद से जायजा लेंगे और जानेंगे कि जमीनी हकाइक क्या है। लेकिन तकरीबन हमारे पास जो इतला सोर्सेज के मुताबिक है, पुलिस एहलकार के ऑल ऑफिसर से हमारी बात हुई, उनका यही कहना था कि वो हेलीकॉप्टर के जरिए ही जा सकते हैं यहाँ से बानिहाल से चंद्रकोट और वहां से कुनफर वो उस टनल का जो है जायजा लेंगे। कुनफर टनल जिसकी हम कई दिनों से बात कर रहे हैं और अपने नाजरीन तक हमने उस टनल की पूरी अपडेट दिखाई थी कि टनल तकरीबन 925 मीटर का जो टनल है उसको 6 सालों में तैयार किया गया है गेमन इंडिया प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर लिमिटेड की जानिब से, और आज वो है जो अवाम के नाम वक्फ होने जा रहा है, उससे अवाम को काफी राहत की उम्मीद है। वही रामबन बानिहाल स्ट्रेच जो है 3 डेडलाइन मुकम्मल होने के बाद अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन अवाम को उम्मीद है कि मरकजी वजीर यहाँ आए हैं, वो जमीनी हकाइक से यहाँ पर जो है डिटेल्स ले रहे हैं और आने वाले दिनों में उन्हें यहाँ रामबन बानिहाल स्ट्रेच जो सबसे बिल्कुल बिलाल, तो
आवाम को उम्मीद है और सबसे इंपॉर्टेंट जो अपडेट आपने दिया है कि वो किस तरह से केंद्रीय मंत्री जो है वहां पर पहुंचेंगे, उस पर लगातार नजर बनी रहेगी। और हमारे साथी जहूर रिजवी भी मौजूद है। जहूर, लगातार हम देख रहे हैं कि खास तौर पर वहां पर जो मकामी लोग हैं उनमें खासा जोशो खरोश देखा जा रहा है, और हो भी क्यों ना, तारीखी लम्हा है। एक ऐसा वक्त था जब मौसम की सख्ती की वजह से कुछ इलाके बिल्कुल मुल्क से कटकर रह जाते थे। अब कम से कम उनके लिए राहत की खबर है। इस टनल का बनना कहीं ना कहीं लाइफलाइन भी माना जा रहा है। जैसे कि अगर हम इस हाईवे की बात करें, ये एक लाइफलाइन है जो वादी कश्मीर को रेस्ट ऑफ द इंडिया के साथ जोड़ती है, और इस पे काम शुरू बहुत पहले किया गया था, लेकिन अभी चूंकि जो है बाज़ वजूहात की बिना पर जो बानिहाल टू रामबन स्ट्रेच है उस पे अभी काम मुकम्मल होना बाकी है। लेकिन लोगों में काफी खुशी है, और अभी चंद ही लम्हात के बाद जो है मरकजी वजीर नितिन गडकरी और उनके साथ एलजी मनोज सिन्हा और साथ में डॉक्टर जितेंद्र सिंह यूनियन मिनिस्टर, वो जो है यहाँ पे एक समारोह में शिरकत करने वाले हैं। और हम आपको बताएं कि वो यहाँ पे कामकाज का जायजा लेंगे, और जो श्रीनगर बानिहाल स्ट्रेच है उसके साथ बानिहाल रामबन स्ट्रेच है, और उसके साथ जो चंद्रकोट में टनल जो ब्रेक थ्रो है, उन सभी कामों का जो है वो जायजा लेंगे। हमारे साथ जो डीडीसी चेयरमैन है रामबन की डॉक्टर शमशान शान जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम। ये बताइए कि ये जो ओवरऑल डेवलपमेंटल सिनेरियो आप देख रहे हैं, एक तरक्की की राह पे गामजन हो गया है रियासत जम्मू कश्मीर, इसको आप कैसे देखते हैं? और स्पेशली अगर हम बात करें श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह की, इसमें जो बड़े बड़े ब्रेक थ्रोज जैसे ये नवयुगा टनल, उसके साथ साथ आगे जो और टनल्स बनी, इनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहूँगी आपके चैनल का कि मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। उसके साथ मैं आज का जो प्रोग्राम है ये बहुत ही एक खुशाइन कदम है, और खासकर जो बानिहाल काजीगुंड का जो टनल है उनके कम से कम 16 किलोमीटर का जो फासला है वो कम कर रहा है, जिससे काफ़ी हद तक जो जैमिंग में प्रॉब्लम होती थी, और खासकर एवेलेंचेस, स्नो एवेलेंचेस की वजह से हमारा जो ट्रैफिक बंद रहता था वो अब काफ़ी हद तक जो है कम हो गया। और हमें इस वक्त अगर हम ये कहें कि रामबन से श्रीनगर जाने के लिए हमें सिर्फ 2 आवर्स का वक्फा चाहिए, तो हम 2 घंटे में रामबन से श्रीनगर पहुंच सकते हैं। तो आज यहाँ पर हमारे जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं रोड्स, बिल्डिंग्स एंड हाईवेज के, नितिन गडकरी जी, मैं उनका वेलकम करना चाहती हूँ, और उनके साथ अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब का, जितेंद्र सिंह जी का, जिन्होंने आज यहाँ पर इस नवयुग टनल की इनॉग्रेशन का प्रोग्राम रखा। और उसके साथ साथ उन्होंने जो पूरे इस हाईवे को इस वक्त जो उन्होंने रखा है कि पूरा विजिट उनको करना है, उनको चंद्रकोट कुनफर टनल का भी विजिट करना है, और जो पंथेल का टनल है उसका भी उनको देखना है। तो काफी हद तक जो है इसमें हमें और बूस्ट मिलेगा, और खासकर जो धीमी गति से काम चल रहा था इस हाईवे का, क्योंकि काफी देर से अगर इस हाईवे की वजह से कोई सफर हो रहा है तो वो रामबन डिस्ट्रिक्ट के लोग हो रहे हैं, क्योंकि खासकर एनवायरमेंट पोल्यूशन काफी ज्यादा हो चुका है, और लोग डस्ट से जो है काफी हद तक प्रॉब्लम में आ चुके हैं। और उसके साथ साथ आपने जहां तक देखा कि खासकर एक्सीडेंटल प्राउन एरिया अगर है तो वो यही रामबन बनिहाल स्ट्रेच है। तो इस स्ट्रेच को मैं आपके माध्यम से भी एलजी सर से, और खासकर जो हमारे सेंट्रल मिनिस्टर यहाँ पे आ रहे हैं, इनसे गुजारिश करूंगी कि इस हाईवे को जो है विद इन टाइम लिमिट में कंप्लीट किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को जो प्रॉब्लम है, जो दिक्कतें आ रही हैं, वो फेस न करें। और बिल्कुल हिना, मैं आपको बताऊं, ये डॉक्टर शमशाद शान, डीडीसी चेयरमैन रामबन, और इनका यही कहना कि उम्मीद काफी है, और ये स्ट्रेच जो है स्पेशली बानिहाल रामबन स्ट्रेच की इन्होंने बात की, और इन्होंने कहा कि ये जल्द इस पे काम जो है वो मुकम्मल होना चाहिए। और हिना, मैं आपको बताऊं कि जैसे कि इस हाईवे पे हम देख रहे हैं काफी टनल्स बनी हुई है, नए ब्रेक थ्रोज, और ये जो पीछे आप नवयुगा टनल देख रहे हैं, जी। इससे घंटों की मुसाफत जो है वो मिनटों में तय हो गई। तकरीबन 8.5 किलोमीटर के करीब ये टनल है, और यहाँ घंटों लग जाते थे जब वादी से जो है आमदरफ्त शुरू होता था, तो यहाँ बानिहाल तक पहुंचते पहुंचते उनको घंटों लग जाते थे। और ये हाईवे नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया का कमाल है, और जो सरकार है अभी जो मौजूद वजूद में है, तो ये जो ओवरऑल प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो एक
डेवलपमेंटल सिनेरियो बिल्कुल तरक्की की नई राहें जिन पर लगातार नया जम्मू कश्मीर आगे बढ़ता जा रहा है और यही तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ बिलाल बाली भी मौजूद हैं। बिलाल, आपसे हम जानना चाहेंगे कितना अहम मानते हैं आप आज जो ये शुरुआत होने वाली है, क्योंकि लगातार हम देखते रहे हैं कि ये जो इस तरह के काम है, इस तरह के तरक्कियाती काम है, बरसों से मकामी लोग यहाँ का इंतजार कर रहे थे कि इस तरह के काम शुरू किए जाएं। मकामी लोगों का रिएक्शन खास तौर पर यहाँ हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाना चाहेंगे। काफी उम्मीदें हैं वाबस्ता। इस बार हमने अगर देखा कि सबसे बड़ी चैलेंज जो था वो पंठियाल था। माजी में उस पंठियाल ने बहुत सारी जानें ली थी, लेकिन अब पंठियाल का T5 टनल थ्रू होने के बाद मार्च 16 से आवाम के नाम जब वक्त हुआ, यहाँ पर लोगों ने राहत की सांस ली। उनका यही कहना था कि पंठियाल के उस मुश्किल तरीन शूटिंग स्टोन की जद में वो नहीं आएंगे और बआसानी वहाँ से सफर पूरा हो सकेगा। वहीं अगर हम बात करेंगे सीताराम पस्सी के पास जिस टनल का ब्रेक थ्रू हो रहा है, वहाँ भी डिफिकल्ट स्ट्रेच माना जाता था, एक्सीडेंटल एरिया था, ब्लाइंड कर्व्स थी। उस टनल के बन जाने से भी लोगों को राहत होगी। वहीं अगर रामबन टाउन पे पहुंचेंगे हम, तो वहां का फ्लाईओवर है, उसे भी पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए गेमर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है वो दिन रात काम कर रही है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी उसका वॉच कर रही है और कोशिश यही की जा रही है कि विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उस बाईपास को बनाया जाए, फ्लाईओवर को, ताकि रामबन के मार्केट के अंदर जो लोग डस्ट खा रहे हैं, जो रोड की हालत खस्ता होने की वजह से, ट्रैफिक जैम होने की वजह से उन्हें परेशानी, उससे आजादी मिलेगी। और उसके बाद मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे ये जेसवाल ब्रिज है। डिफेंस के एतबार से या तमाम तरह एतबार से अगर हम कहेंगे, ये बहुत है। दरियाई चिनाब पर बना ये जेसवाल ब्रिज है। 2 लाइन अभी बनाया है गेमन इंडिया ने और उससे पहले एक और 2 लाइन टनल ये ब्रिज बना हुआ था, इसको भी मुकम्मल कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा संग-मील था क्योंकि दरियाई चिनाब यहाँ गुजरता। इस तरह के कई संग-मील लगातार तय हो रहे हैं और यही तस्वीरें हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं अपने दोनों साथियों का, बिलाल बाली और ज़हूर रिजवी का, जो कि लगातार इस अहम खबर पर हमारे साथ मौजूद रहे, अपडेट दे रहे हैं। यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए। और ब्रेकिंग एट 10 में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेकिंग एट 10 में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। कश्मीर से बड़ी खबर आपको दे दें, जहां ईदगाह श्रीनगर में ईद की नमाज के ताल्लुक से ये अहम खबर है। ईदगाह में ईद की नमाज की इजाजत नहीं मिलेगी। जम्मू कश्मीर पुलिस इस बात की इजाजत नहीं देगी। आला पुलिस ऑफिसर्स ने न्यूज़ 18 को एक्सक्लूसिव इस बात की जानकारी दी है। शहर में शांति भंग करने की अनुमति नहीं देंगे। आपको बताएं कि डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने ईदगाह में नमाज की बात कही थी और अब इसी पर न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में ये एक्सक्लूसिव आपको दे रहे हैं कि ईदगाह में ईद की नमाज की इजाजत नहीं मिलेगी। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से इस बात की खास जानकारी न्यूज़ 18 को दी गई है। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी ईशान। ईशान, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहा है जम्मू कश्मीर पुलिस ने ईद की नमाज के ताल्लुक से? देखिए हिना, हमारी एक एक्सक्लूसिव बातचीत पुलिस के एक आला अधिकारी से हुई है जिसने ये कहा है कि ईद की नमाज जो ईदगाह में अदा करनी थी और उसकी इजाजत जो नहीं दी जाएगी। 2019 में जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ था, तब से लगातार जो ईदगाह है वहाँ पर नमाज पढ़ने नहीं दी गई, क्योंकि उससे पहले वहाँ पर पत्थरबाजी और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पें और उसके बाद पत्थरबाजी जो है आधे दिन तक जारी रहती थी और एंटी इंडिया प्रोटेस्ट जो है लगातार वहां पे देखने को मिलते थे। तो यही सब देखते हुए पुलिस ने ये फैसला किया है कि वहां पर किसी को भी ईद की नमाज जो है पढ़ने नहीं दी जाएगी। हमने उनसे जब ये सवाल पूछा, ये इस पस मंजर में था, इस कंटेक्स्ट में था कि जो दरख्शान अंद्राबी है उन्होंने ये कहा है कि अगर मौसम इजाजत देता है तो वहां पर नमाज जो है अदा की जाएगी, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि फिलहाल पुलिस की तरफ से तो कोई अनुमति नहीं होगी, क्योंकि किसी को भी अमन और शांति को भंग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि वहां पर जो हिस्ट्री रही है, वहां पर लगातार जो ईद के नमाज के बाद जो कुछ लोग हैं वो वहां पे पत्थरबाजी करते हैं और भारत के खिलाफ नारे देते थे और 2019 के बाद जब एब्रोगेशन आर्टिकल 370 हुआ तो वहाँ कहीं ना कहीं पुलिस कह रही है कि शहर में अशांति है,
कोई भी ऐसी इंसिडेंट जो है नहीं हुआ है, और वो किसी इंसिडेंट को रिपीट होने बिल्कुल नहीं देंगे। तो इस साल तो फिलहाल पुलिस कह रही है कि इस साल अनुमति नहीं दी जाएगी, इस बार अनुमति नहीं दी जाएगी, आगे चलते हुए देखना होगा क्या होता है। लेकिन उनका ये भी कहना है कि ये जो पुलिस फैसले ले रही है, ये पुलिस लोगों के लिए ही पक्ष में ले रही है, क्योंकि ईदगाह ऐसी जगह थी जहां पर पत्थरबाजी होती थी, फिर पुलिस को गैस शेल्स का इस्तेमाल करना पड़ता था, पूरे आधे दिन तक वहां पे पत्थरबाजी होती थी। तो उसी को देखते हुए ईशान, आपसे जानना चाहेंगे, डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी की तरफ से अभी कोई रिएक्शन, कोई रद्द-ए-अमल सामने आया है? फिलहाल तो नहीं। लास्ट टाइम जब मेरी बातचीत उनसे हुई थी तो उनका ये कहना था कि मौसम को पहले देखा जाएगा, फिर ये देखा जाएगा कि सरकार कैसे इसको आगे लेती है। क्योंकि कुछ समय पहले ही भी जो डीजीपी है जम्मू कश्मीर पुलिस के दिलबाग सिंह ने ये कहा था कि ये डिवीजनल एडमिनिस्ट्रेशन का कॉल है, और अभी फिलहाल इस पर कोई कॉल नहीं लिया गया है। लेकिन फिलहाल जब हमारी बात बिल्कुल ईशान, और इस अहम खबर पर क्या कुछ रद्द-ए-अमल रहेगा वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ईशान मानी आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। और रुख करना चाहेंगे श्रीनगर से हमारे साथी परवेज भट्ट का। परवेज, इस बेहद अहम खबर पर क्या कुछ तफसीलात आपके पास है? इस तरह का कुछ सामने आ जाए, क्योंकि जो ईद की नमाज अलो करना ये बहुत ही एक सेंसिटिव इशू माना जाता है यहाँ पे, क्योंकि अक्सर हमने देखा है जब भी ईद की नमाज ईदगाह में अदा की जाती थी तो वहाँ पे उसके बाद जो है लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स हो जाती थी, और पुलिस को काफ़ी दिक्कतें होती थी फिर उसको टैकल करने में। ये 2019 के बाद लगातार हमने देखा है कि जो ईदगाह में जो एक बहुत बड़ी एक गैदरिंग जमा होती थी उसको अलाउ नहीं किया जाता था। रीजंस यही है कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ताकि ना हो। अब इस बारी थोड़ी उम्मीदें जगी, इस वजह से जगी थी कि जो वक्फ चेयरपर्सन है दरख्शां अंद्राबी, उन्होंने थोड़ा बहुत इशारे दिए थे। हालांकि उन्होंने भी खुल के नहीं कहा था कि ईद नमाज वहां पे अलाउ होगी या नहीं होगी, लेकिन इशारे उन्होंने कुछ ऐसे दिए थे कि उनकी तरफ से, वक्फ की तरफ से जितने भी इंतजामात हैं वो पूरे कर दिए जाएंगे। अगर मौसम ने इजाजत दी तो हो सकता है कि ईद की नमाज अब की बार वहां पे अदा की जाए। लेकिन जो अभी तक पुलिस जराए के हवाले से सामने आ रहा है, हालांकि फाइनल डिसीजन इसमें अभी नहीं लिया गया है, और फाइनल जो पुलिस की तरफ से, चाहे प्रेस रिलीज की बात करें या किसी ट्वीट की बात करें, ऐसा अभी तक सामने नहीं आया है कि पुलिस ने क्लियरली बोल दिया हो कि नमाज हम अदा नहीं करने देंगे। लेकिन जो जराए के हवाले से, पुलिस सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है, उससे यही लग रहा है कि शायद लॉ एंड ऑर्डर को मद्देनजर रखते हुए इस बार की ईद नमाज जो है वो भी अदा नहीं करने दी जाएगी। हालांकि अभी ईद नमाज से पहले दो और जो बड़े ओकेजन्स हैं, चाहे हम आखिरी जुम्मा की बात करें वो जुम्मतुल विदा आता है, और दूसरा शब कदर की जो रात आती है वो देखना होगा कि क्या इन दो ओकेजन्स पे जामिया मस्जिद में शब कदर मनाने दी जाएगी या फिर जो जुम्मतुल विदा की नमाज है क्या वो अदा करने दी जाएगी। क्योंकि ऐसे इन दो ओकेजन्स पे भी देखा गया था कि हालात अक्सर ख़राब होते थे और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स हो जाती थी जामिया मस्जिद के इर्द गिर्द। तो 2019 के बाद ये दो चीजें भी वहां अदा नहीं करने दी गई। ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये ईद से पहले आती हैं, तो इससे भी काफी कुछ क्लियर होगा कि क्या परवेज, और इस पर क्या कुछ और रद्द-ए-अमल रहेगा उस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। परवेज भट्ट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बेहद अहम जानकारी के लिए। और यहां रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।